Hi guys. Hi everyone. Happy Friday to everyone. I hope everyone's doing well. I think this is about the fourth Friday that I'm spending at home with my family during Corona pandemic, and they're also spending at home. So I just hope that everything gets better soon. But the upside of this is that we get to have Usama here with us right after Tuba for our session. So Tuba and I are here from Team Plan 9, and I want to introduce Usama from A-Clan, who's the managing director there. Hi, Usama. How are you doing? Managing partner, like I've already received a Managing lot partner. of backlash on managing that. It's So managing okay. partner. Haters are going to hate, but okay. Managing partner. कैसे हैं आप? All good, alhamdulillah. आप सुनाए महाम. बस मैं ठीक ठाक हम ठीक हैं आप बताएं so can you just give a like a quick 2 minute 2 second intro of what A-Clan is in general and then what is your role and then we can move on to the session which is going to focus around how to navigate the transition from everyone but mostly startups from a normal routine to a work from home routine and then we can focus on what you've prepared. ठीक है. ठीक है. So I'll give a very, you can say, formal, bookish definition or let's say pitch of what A-Clan is, and then we can further discuss this in this, you can say, session in itself. So A-Clan happens to be a digital services oriented platform which connects young professionals with local businesses. So what we tend to do is we simply go out and curate teams of certain underutilized young professionals who can be students or who can be, you can say, unemployed folks. और उनको फिर हम connect करते हैं with these, you can say, businesses which require, let's say, social media services or per se technical services or any kind of assistance which can be done in a very variable format. So this is what we tend to do. We happen to be, let's say, the middle party organization which manages the entire ecosystem on behalf of these two main entities. Okay, but would you say that you are a digital agency or like do you not fall in that category? मतलब थोड़ा सा आप उससे vast हैं या different services हैं किस तरह से आप मतलब because you being in startup yourself, I just want to know okay from starting out as a startup would you put yourself now in the agency category or would you still consider yourself maybe an advanced stage startup? I see. So this is the most generally asked and very important question, which has been thrown at us from time to time on different occasions. So people usually confuse us with the mainstream agency, but it's just that we happen to do some of the stuff we work to do, like we happen to do is also the kind of stuff which an agency does. So simply put, अब अगर मैं आप लोगों की इसकी example दूं तो in Pakistan, what we are trying to do is we are trying to formulate, you can say, talent pool, which can cater to different kind of services, right? Now, social media services, or let's say technical services or IT services are those verticals जो कि इतने ज़्यादा वैसी formalized नहीं थे. So for us, it was very easy to penetrate into that vertical first, but not, you can say, in its entirety. Like primarily, we can take ourselves as an alternative to a mainstream agency, but A-Clan cannot be labeled as an agency per se, because the way we work is entirely different. Our model is different. Our ambitions are different. Our very core or our mission statement is different, and it's nowhere near what an agency would do. Okay, अब इसी के addition में I would like to ask you another question कि how do you define A-Clan before and after Corona? Like, is there a difference in your work, in your working as a company before and after Corona? उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. अच्छा, so basically when it comes to Corona, like इसके अंदर तो like कोई दो राय है ही नहीं. As in every single business out there and the way they function, their modus operandi has been changed by this pandemic situation. हम लोगों को what we can you can say claim is that कि हमें जो hit पड़ी है वो
it's not that devastating because our model was already fluid or flexible enough that we could simply adhere to the ongoing situation, right? Pretty spontaneously. But अगर हम मेन स्ट्रीम बिजनेसेस की बात करें तो ऑफ कोर्स लाइक उनके लिए काफी ज्यादा मेजर हिट ये कंसिडर होगी. और उसके अलावा यहाँ पे मैं एक बहुत मेजर बात करना चाहता हूँ, ये है कि unfortunately, when we are having discussions like these, most of the people tend to, you can say, label these discussions as very binary. So for instance, they consider it as either black or white. But there are many gray areas, like whatever I would say, some people or some businesses or some entities might be able to relate to us. And some people are not even relevant in that, you can say, spectrum of discussion. So agar like abhi, for instance, abhi mujhe, like I can already see that coming, someone can come in and say that, hey, you claimed this, that this is what happened during corona, or this is what happened before corona or after corona, but our situation is entirely different. यहाँ पे लाइक हम अभी ऑफ कोर्स जब मैं थोड़ा सा एक लाइन के अंदर डीप डाइव करूंगा, हम कुछ assumptions या कुछ hypothetical scenarios as in pivot कर लेंगे जिसके अराउंड हम बात करेंगे. So for instance, there might be a case के वो एक B2B business के लिए purely relevant है, but एक B2C business के लिए it's an entirely reverse situation. So मैं ये जरूर बता दूंगा कि like wherever I am coming from, it's purely from an empirical mindset. Like I've been there, done that, and it only stays relevant to certain domains or certain verticals. Okay. So overall, अगर हम बात करें work from home environment की, so you're saying that and को transition होने में इतना difficulty नहीं आई because you were already following that pattern, if I'm not wrong, right? So Exactly. अब if for instance कि अगर many companies who are already in business would have been following your method of home, तो वो चीज हम कोरोना के को फाइट करने में किस तरह से बेहतर हो सकता था फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ फाउंडर पर्सपेक्टिव, कि अगर वो ऑलरेडी इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहा था तो आज हम लोग किधर खड़े होते फ्रॉम इन कोरोना और बिजनेस की इंडस्ट्री में. Fair call. I guess यहाँ पे like I can take you back in 2011 and you can say like to narrate a very small story, right? Sure. Although like जब मैं story सुनाता हूँ या examples देता हूँ, they tend to be a bit longer, but मैं एक आप लोगों को story सुनाऊंगा and this आप in इतना itself long ना is कीजिएगा, आप उसका short version सुना दे. done. So like this story in itself is the story of origin of A-Clan, और इसी के अंदर आप लोगों को आंसर मिल जाएगा आपके क्वेश्चन का जो भी आपने पूछा है related to corona and related to remote modus operandi. And matter of fact is यहीं पे we can also kind of discuss these first two, you can say, postulates Points. of our slide, right? A-Clan's past experience and remote modus operandi, क्योंकि अभी भी काफी ज्यादा confusion है in the Pakistani ecosystem related to work from home, digital nomadism, telecommuting वगैरह, right? So basically in 2011 I moved from Lahore to Islamabad to this university which goes by the name of NUST, which also happens to be one of the top institutes of Pakistan. So जब मैं नस्ट में गया तो वहां पे we realized कि since I was a host slide, there were a couple of other host slides as well. I met my best friends and now co-founders back in those days. एक जो था वो इस्लामाबाद से थे, एक सियालकोट से थे, right? So हम लोगों के different lifestyles थे, but as soon as we came into the university, you can say, ecosystem, we realized that we still have like हमने बहुत ज़्यादा time ज़ाया किया in extracurricular activities, but we realized that we still have a lot of time on our hands, right? And then again, our upbringing like has been like this since the beginning, which again I'm a very big ambassador of in the Pakistani ecosystem, and it's not very typical of, let's say, brown parents or Desi parents. That was of financial sustainability and independence
तो हम लोगों ने जब रियलाइज किया वो ये था कि लेट्स से अगर हम स्टूडेंट्स हैं और हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम भी है, एंड वी आर डूइंग जस्टिस टू आवर एकेडमिक्स एंड वी आर आल्सो डूइंग जस्टिस टू आवर एक्स्ट्रा करिकुलर लाइफस्टाइल, we still can go out there and work, right? And we can earn money, enough money, so that we can treat it as our pocket money. But the problem with our ecosystem is, or like if we say, like if we address the larger problem in Asia per se, is that कि जो working students consider किए जाते हैं, तो हमेशा हमें ये advice किया जाता है कि आप सिर्फ तब काम करो जब आप graduate कर चुके हो, right? और this one notion of employment has not let this, you can say, ecosystem for, you can say, students at work to develop the way it is developed in the Western world, right? Agar aap, if you are in the Western ecosystem, or say, I'm not saying Western, but if you are in a developed country and you are a student and you also want to do some part-time work, not only it would be very formalized, it would be also legalized, and you would have some, you can say, organizations, or you can say government in itself, which would safeguard your interests. तो अब वहां पे जब हमने रियलाइज किया तो वहां पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, राइट? बट एट द सेम टाइम हम लोग ये भी चाहते थे कि हम अपना काम भी करें और स्किल भी हार्नेस करें। और यहाँ पे एक इशू आया कि जब हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशन से जाके बात की भी, तो जो आपकी मेन स्ट्रीम और पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने तो कहा था कि दैट्स नॉट पॉसिबल, आप अगर स्टूडेंट हो तो ऑफ कोर्स आप एक जगह पे नहीं आ सकोगे, और एक जगह पे भी नहीं आ सकोगे दैट मीन्स के यू वोंट बी एबल टू वर्क, राइट? तो हमेशा हमारा आर्ग्यूमेंट ये होता था कि व्हाट इफ हम आपको जो काम चाहिए वो हम दे दें, हमें सिर्फ आपसे ये फेवर चाहिए होगी कि वो हम रिमोटली कर लें, राइट? Instead of reporting on ground to a certain location, we should be able to do that remotely. अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने ये समझ लिया और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने ये नहीं समझा। जिन ऑर्गेनाइजेशंस ये समझा था उन लोगों को टेक्निकली सर्विसेज चाहिए थी सोशल मीडिया रिलेटेड या डिजिटल सर्विसेज पर से, क्योंकि उनका मानना ये था कि जो रिमोट वर्क है वो सिर्फ डिजिटल डोमेन में ही हो सकता है, जो अभी भी कंफ्यूजन है। लाइक जब भी पाकिस्तानी इकोसिस्टम, एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम में रिमोट वर्क या कोट एंड कोट डिजिटल नोमैडिज्म डिस्कस किया जाता है, तो जनरली आईटी या फिर मार्केटिंग सर्विसेज को ही रेफर किया जा रहा होता है, ऑल्दो देयर इज अ लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ सर्विसेज और यू कैन से डोमेन्स व्हिच कैन बी केटर्ड टू remotely, which we are seeing right now in Corona's case, right? So 2012 में हमने कुछ jobs करके देखा और हम लोगों ने realize किया it's very easy. Like we were studying, we made some good pocket money out of it. I won't say like good money, but at that time I still remember we were students, and when we got our very first check from this one organization, it was more than enough. Like more than enough in a way कि हम even अपनी पूरी क्लास को, मुझे आज भी याद है, हम एक डिनर पे ले गए थे टू सेलिब्रेट दैट। वहां पे भी रियलाइज्ड कि अगर इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन हमें शॉट दे रही है, राइट, और हम लोगों ने लाइक वी हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ, और लेट्स से वी वर लकी इनफ टू फिगर आउट दिस वन यू कैन से गैप, तो हाउ अबाउट वी मेक एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज काइंड ऑफ फॉर्मलाइजिंग or standardizing this entire process. So यहाँ पे एक छोटी सी like side story. We were doing this one university event. Pro bono था, हर student अपनी मर्जी से कर रहा होता है और free of cost कर रहा होता है, और उसके अंदर scenario होते हैं। थोड़ा सा ना, अगर हम थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करें, एक सवाल मेरे अपने माइंड में काफी मतलब मैं इस बारे में सोचती हूँ कि बहुत सारे डिजिटल एजेंसीज हैं, they've lost their clients because the client are saying that we don't have money to pay for digital presence, ठीक है? तो the question I have in my mind is कि everyone is spending a lot of time online. So do you think कि pulling out your account from a digital agency is a right decision at this moment? कि आप बिल्कुल ही उस पर स्पेंड ना करो और लोग आपके ब्रांड के बारे में और उसके बारे में बिल्कुल भूल जाएं, या फिर वो प्रेजेंस उनकी होना जरूरी है ऑनलाइन? अच्छा, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा है, और आई गेस ये मैं कवर कर रहूंगा द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल एक्सपेंसेस में, एंड दैट वुड बी द वेरी एंड ऑफ आवर डिस्कशन।
But then चलो again, ठीक है। like we have to like cater to this because that is the elephant in the room. Like, अच्छा, so basically, हाँ, so sorry, basically go वहाँ, ahead. हाँ, हमने ये डिस्कस किया कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के पास गए, हमने उन्हें कहा कि हमें स्पॉन्सरशिप चाहिए, राइट? इट्स अ वेरी बिग टेल्को इस्लामाबाद में, आई वोंट नेम देम। सो Okay. उन्होंने कहा कि हम आपको स्पॉन्सरशिप तो दे देते हैं आपके इवेंट की, आप हमें ये बताएं कि आपकी एजेंसी कौन है। And when we said agency, like we were engineering students. I was in the software engineering batch, 2011 to 2015. और यहाँ पे भी एक इंटरडिसिप्लिनरी वो एक वॉइड जो क्रिएट हुआ है पाकिस्तान में, वो भी आ जाता है। हमें पता भी नहीं था कि एजेंसी क्या होती है। सो वी आस्क्ड देम कि लाइक हु आर यू रेफरिंग टू? सो दे सेड कि जो आप लोगों ने पूरी अपनी कैंपेन चलाई हुई है इस एक पर्टिकुलर इवेंट की सोशल मीडिया पे, उसके डिजाइन से लेके उसकी एग्जीक्यूशन और उसकी रीच हमें काफी ज्यादा पसंद आ रही है, तो आपकी ये कौन सी एजेंसी से हैंडल कर रही है? सो वी टोल्ड देम स्टूडेंट्स कर रहे हैं, एंड देन दे आस्क्ड, अच्छा ये अगर स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो आप उन्हें कितने पैसे दे रहे हैं? एंड व्हेन देन वी टोल्ड देम कि वो प्रो बोनो कर रहे हैं, लाइक वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। और जब उन्होंने ये पूछा कि अच्छा उनका कैच क्या है इसमें, सो वी टोल्ड देम उनका कैच सिर्फ ये है कि दे विल गेट टू अटेंड दिस इवेंट फॉर फ्री। That is when they were amazed by the fact that students who are working on pro bono basis, like in other words, free of cost, they can come up with international standard campaigns. And we were surprised as well that students can still earn money because right there and then this one telco offered us कि अगर हम एक certain आपको campaign और certain account आप लोगों को दे दे तो आप वो handle कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एक क्वेश्चन आया था कि देयर आर टू वेज। उस वक्त वी वर अ टीम ऑफ 6 folks। द क्वेश्चन वाज कि या तो हम 6 लोग मिलके एक एजेंसी फॉर्म कर ले, या फिर हम लोगों ने ये रियलाइज किया कि देयर इज अ क्लियर कट गैप, लाइक एक अगर टेलको जिसके पास काफी ज्यादा मेजर रिसोर्सेज का पूल है, उन्हें भी ये सर्विसेज रिक्वायर्ड है। And then there are these students not only nursed in other universities of Pakistan as well, and I won't say universities only, also colleges or high schools. So how about we take a step back, instead of being greedy and instead of being those 5 folks which are doing everything, instead of forming an agency, we would rather form a platform which would act to facilitate like smaller agencies or smaller organizations like these which are in the business of talent curation और टैलेंट स्काउटिंग। यहाँ से फिर एक लाइन क्रिएट हुआ और यहाँ से फिर हम लोगों ने अपना एक बहुत बेसिक एथो, लाइक हमारे एथोस में ये था कि वी नेवर हायर्ड एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर यू कैन से मॉडस ऑपरेंडी। लाइक अगर वो लोकेशन लॉक्ड है तो हम उन्हें उसी वक्त रिमोट की ऑप्शन दे देते थे, क्योंकि हमें पता था, क्योंकि हम भी स्टूडेंट्स हैं, देयर वुड बी अदर स्टूडेंट्स जिनके पास कम्यूट के इश्यूज होंगे और वो इधर से उधर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे इतनी आसानी से नहीं जा सकते, दैट टू इन रूटीनली मैनर। तो हमने उन्हें रिमोट की इजाजत दे दी, राइट? और वहां से बिजनेसेस को हमने बस यही बताया कि लाइक यू विल गेट व्हाट, अच्छा, सो हमने बिजनेसेस को यही बताया कि आप लोगों को ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके जो टीम के लोग हैं या रिसोर्सेज जो हैं वो आप समझ लो कि रिमोट है या फिर नॉन रिमोट है, बिकॉज हम लोगों ने कभी वो डिस्टिंक्शन या वो लाइन कभी ड्रॉ ही नहीं की। हमने सिर्फ उन्हें ये बताया कि यू शुड फोकस ऑन द आउटकम, राइट, एंड लीव ऑल ऑफ द अदर स्टफ ऑन अस। दैट इज वेयर वी truly embraced remote working model. It's been 8 years, and if I were to say we have had an office, तो हमने ऑफिस आज तक प्रॉपरली हमने लिए भी हैं, हमने आप समझ लो कि ऑर्गेनाइज भी किए हैं, बट उन्हें कभी प्रॉपरली एम्ब्रेस नहीं किया एज ऑफिस। लाइक हमारे पास जितने आज तक एम्प्लॉय से लेके कॉन्ट्रैक्टर्स आए हैं, उनकी किसी के भी कॉन्ट्रैक्ट में ये स्पेसिफाइड नहीं है कि आपने एक सर्टेन लोकेशन से बैठ के काम कर रहे होना है। उसकी एक मेजर रीजन ये भी है कि हम खुद भी इस तरह का लाइफस्टाइल चाहते हैं, बिकॉज वी लाइक ट्रैवलिंग एंड वी आल्सो लाइक यू कैन से चेंजिंग आवर एनवायरनमेंट while we work. So we hop in, hop off in different co-working spaces. We also have partnerships with incubators like yourself.
और लाइक हमारी टीम के लोग भी यूटिलाइज कर सकते हैं और हम लोग खुद भी यूटिलाइज कर सकते हैं. तो मुझे ये लगता है कि आप लोग, because your organization really believe in working remotely and you're very adaptable, so that's why you are touching many other domains जिसमें आप अपना business भी expand कर सकते हैं और वो you're Exactly. not So restricted to office. या यू आर 100% करेक्ट. इसी वजह से जब आपने पूछा था कि हम लोग कितना इम्पैक्ट हुए हैं कोरोना और कोविड से, वो इम्पैक्ट हम इसलिए ज्यादा नहीं हुए क्योंकि हमारी टीम ऑलरेडी उसे पता था कि दे कैन शिफ्ट टू रिमोट वर्क, राइट. सो हम ये पिछले 8 साल से करते आ रहे हैं और इस बार हमने ये कहा कि ठीक है, जो आप ये रिपोर्ट करते थे इन लोकेशंस पे, इन सिटीज में, यू डोंट हैव टू डू दैट, जस्ट स्विच रिमोटली. बट हम इम्पैक्ट कहाँ पे हुए? इम्पैक्ट हम वहां पे हुए जहां से हमारा कैश इनफ्लो होना था. लाइक दीज बिजनेसेस व्हिच यू रेफर्ड टू, जिनका हम आगे जिक्र करेंगे, उन लोगों को ये लगा कि इट्स अ फाइनेंशियल मेल्टडाउन, व्हिच अगेन मेक्स सेंस. और एट द एंड ऑफ द डे एवरी बिजनेसमैन or entrepreneur has to take into account their cash flow inflows and outflows. So they started pulling or they started freezing their accounts, right? So as far as our internal operations are concerned, we are rock solid as of now. But since a part of our working or operations depend on our clients, or you can say the outside world, so we are impacted in that regard. Acha, I want to ask a question, something related to this. You just mentioned that you have sort of been like you've been present since the past 8 years, I think you said, and you've been working on this model ever since you started. But पिछले जितने भी सालों में, you know, you've had this work from home model, or you've had this sort of मतलब कोई 9 to 5 वाली routine नहीं है, किस तरह की routine रही है, and your employees have the facility, like they have the freedom. If you know someone doesn't feel like coming to the office, they can work from home, and they're in different cities as well. कभी भी या कितने ज़्यादा have you faced this problem of employee motivation or employee work output? मतलब कितना often ये feel होती है कि ये problem है, and like how of a check do you have to keep on that? लाइक एक या तो तुम्हारी आपकी बिलीफ है कि भाई नहीं, मेरे जो अब मैंने उनको फ्रीडम दिया हुआ है तो वो बहुत मोटिवेटेड है और मुझे उनसे उनकी रिक्वायर्ड वर्क आउटपुट आ रही है, या हाउ ऑफन डू यू हैव टू वर्क ऑन इट? अच्छा, so basically there are 2 to 3 parts of your question, right? So let me try to dissect them. First things first, हम लोगों ने, दैट इज करेक्ट, दैट इज ट्रूली करेक्ट, हमने कभी भी 9 to 5 उस तरह से बाउंड नहीं किया, राइट? बट हमने कभी रिस्ट्रिक्ट भी नहीं किया. फॉर इंस्टेंस, इफ समवन वांट्स टू डू 9 to 5, दे कैन ऑप्ट फॉर दैट. नाउ देयर इज अ वेरी मेजर, यू कैन से, डिफरेंशिएशन. We are not saying that we don't believe in 9 to 5 model. We are not saying we don't believe in office-based work. That is why we never say work from home, we say remote. What we believe in is that we believe कि हर बंदे के circumstances, उसकी aspirations, उसके ambitions और उसकी affiliations different होती हैं, right? The world we are living in is very complex as of now. तो हम लोग क्या करते हैं? We believe in giving options. We believe in giving a pool of options जहाँ पे एक बंदा certain तरह की तुम लोग समझ लो कि सर्टेन तरह के रोल को ना सिर्फ ट्राई आउट कर सकता है बट स्विच भी कर सकता है राइट अवे. अगर बहुत टेक्निकल टर्म्स में बताऊं तो लीगली और ऑपरेशनली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 3 किस्म के रोल्स होते हैं. फर्स्ट इज ट्रीटेड एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय. फुल टाइम एम्प्लॉय के लिए हमने ये डिफाइन किया हुआ है कि इतने नंबर ऑफ वर्कर्स आपके होने चाहिए वीकली बेसिस पे, नॉट डेली. सो वीकली बेसिस पे दे कैन डिसाइड कि वो कितना काम करना चाहेंगे, राइट? एक सर्टेन डे में, और देन दे कैन मेक अप फॉर द लॉस आवर्स और दे कैन काइंड ऑफ रिडीम देयर एक्स्ट्रा आवर्स राइट अवे. सेम इज द केस विद द लोकेशन. लाइक वी टेल देम कि अब ऑफ कोर्स कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि यार 3 दिन मैं घर से काम करूंगा, 3 दिन कहीं और से.
और कुछ लोग चाहेंगे, वो कहेंगे नहीं मुझे एक प्रॉपर बेस चाहिए, एक प्रॉपर ऑफिस चाहिए क्योंकि मैं उस रूटीन में सेटअप करना चाहता हूँ। तो उन लोगों के लिए हमने ऑफिस सेटअप की भी ऑप्शन रखी होती है और वर्क फ्रॉम होम की भी ऑप्शन रखी होती है, बट वी नीड टू नो दैट बिफोर हैंड. And at any given time, like let's say someone tried that out, like for instance, मैं अपने team members को उस तरह से नाम नहीं लूंगा, but there's this team member R, right? Team member R tried out this first option for the first month, and then R was like कि नहीं मुझे शायद सूट करता है, मैं दूसरी ऑप्शन ट्राई करूं. तो हम उन्हें वो ऑप्शन दे देते हैं कि चलें आप उस तरह करके देख लें, but not at the expense of the outcome of work. लाइक आउटकम हमारे लिए स्टडी रहनी चाहिए. इनपुट जैसी भी है वो आप एम्ब्रेस कर सकते हो. दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड, वी ट्रीट देम एज पार्ट टाइम एम्प्लॉइज. पार्ट टाइम एम्प्लॉइज के लिए इट्स मोर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एंड दे आर कंपनसेटेड बाय द आवर और बाय द जॉब. Like they can right away sign up for a particular job or sign down from a particular job, no questions asked. और लेकिन उसके अंदर ऑफ कोर्स वो कोई और काम नहीं कर सकते. एंड देन देयर वर पीपल हु आर एम्बिशियस इनफ एंड दे लाइक, अब इसकी एक मैं आप लोगों को छोटी सी एग्जांपल भी दूंगा, अक्सर लोग इसके ऊपर काफी इख्तिलाफ क्रिएट करते हैं. अब लेट्स सपोज एक डिजाइनर है, वो एक लोगो या एक पोस्ट अपने स्किल सेट की वजह से या अपने टैलेंट की वजह से 1 घंटे में बना लेता है, राइट? और एक दूसरा डिजाइनर है, वो सेम स्कोप की पोस्ट, सेम टाइप की पोस्ट, सेम क्वालिटी की पोस्ट 10 आवर्स में बनाता है. अगर आप मंथली मॉडल पे जाओगे, मंथली एम्प्लॉयमेंट मॉडल पे, तो दोनों को सेम कंपनसेशन मिल रही है. बट अगर आप पार्ट टाइम मॉडल पे जाओगे, एज इन परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल पे जाओगे, तो सिंस A is definitely better than B in terms of skill set, and that person can make more money, of course, by putting in more work hours. So that person is, you can say, getting more money in second domain, right? That is the part-time work. But then there would be a question कि अक्सर लोग कहेंगे अच्छा यार अब इसको कहते हैं अंडर यूटिलाइजेशन, जिसको टेक्निकली पाकिस्तान में कंसिडर नहीं किया जाता एक प्रॉब्लम, बट पाकिस्तान की मेरे नजदीक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है. नाउ लेट्स से एक एम्प्लॉयर है, उस बंदे ने अपनी जॉब कर ली 1 घंटे में, और उस बंदे ने कहा मैंने आज का सारा काम 1 घंटे में कर लिया, अब मुझे और क्या काम दे सकते हैं. एम्प्लॉयर कहेगा मेरे पास और काम नहीं है, तो वो बंदा कहेगा अच्छा मैं कोई और काम कर लूं ऑन द साइड. एम्प्लॉयर कहेगा नहीं आप कोई और काम नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज दिस यू कैन से conflict of interest clause in our contract. उन लोगों के लिए, उस तरह के highly ambitious लोगों के लिए, because I have never recommended someone to stick with one earning stream in itself. उनके लिए हमने एक तीसरी clause बनाई हुई है, that is contractors. Right? Contractors क्या करते हैं, वो हमारे साथ भी काम कर सकते हैं, वो 10,000 और organizations के साथ भी काम कर सकते हैं, वो अपना काम भी कर सकते हैं, as long as हमारा काम हमें मिल रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता. अब इन तीनों के पास ऑप्शन है, वो ऑफिस में आके करें या लाइक हमसे पैसे लेके कहीं और जाके बैठ जाएं, या फिर हमारे प्री डिफाइंड जगहों पे आके या अपने घर से बैठ के वो काम करें. अच्छा, थोड़ा सा उसामा, आई वांट टू मूव टुवर्ड्स ट्रांजिशन नाउ. जिस तरह हमने एक वर्क फ्रॉम होम मॉडल की बात कर ली, ठीक है, सो नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द ट्रांजिशन. सो लेट्स से फॉर स्टार्टअप्स, you had a completely different business model. There are a lot of hundreds of other startups जिनका मॉडल बिल्कुल फर्क होता है, जो किसी हार्डवेयर पे काम कर रहे होते हैं, किसी इस तरह की चीज पे काम कर रहे होते हैं, which is not like yours. So for a startup like that who has not adapted this model since the start, but now of course because it's the need of the hour that you have to work from home, तो वो किस तरह से switch कर सकता है? Like how to bring about that switch from a normal daily ongoing routine to suddenly coming to work from home, and not just as an individual but अपने business model को इस तरह से change करना, जो भी उनका XYZ business model है उसको इस तरह से change करना कि मतलब वो उस अपने काम को भी work from home पे ले आए. खुद तो बंदा adjust कर ही जाता है as an individual, but काम को वो किस तरह से work from home वाली चीज पे लेके आए, especially considering कि आजकल वो है. Achha, so this problem I consider it as more of a problem in terms of lack of motivation of doing so instead of operational constraints.
first things first, yes, there would be, you can say, cases या business models ऐसे होंगे जिनके अंदर रिमोट काम करना पॉसिबल नहीं है. हो सकता है सीक्रेसी की वजह से, हो सकता है क्वालिटी मैनेजमेंट की वजह से, हो सकता है एक एक्सपर्टीज वर्ड इस तरह का क्रिएट हुआ है कि उन्हें सुपरविजन चाहिए. तो या देयर वुड बी सम, यू कैन से, बिजनेस मॉडल्स जिनके अंदर ये इन एनी केस इशू आएगा कि वो नहीं जा सकते रिमोट. बट द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान है कि अक्सर मॉडल्स ने ट्राई ही नहीं किया. एक तो होता है ना कि आप ट्राई करो, कोशिश करो, और फिर आपको पता लगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट आउटकम कि हाँ यार, दिस वाज नॉट फिजिबल. मोस्ट द वे आई हैव सीन इट, 50% बिजनेस मॉडल्स ऐसे होंगे जो हो सकते हैं रिमोटली बड़े इजीली मैनेज, बट उन्होंने आज तक ट्राई नहीं किया. एंड व्हेन वी से रिमोट, वी आर नॉट प्योरली सेइंग रिमोट 100%. We are, I'm like, अच्छा, I'll reiterate मेरा myself. I'm saying, आई वांट टू ऐड समथिंग कि अब मजबूरी हो गई है लोगों की. लाइक इवन इफ दे हैव नॉट ट्राइड, और इवन इफ दे हैव ट्राइड, बट नाउ nobody has this option of not doing it. So इस सिचुएशन में जब आपकी एक मजबूरी बन जाती है ना एक चीज की, अच्छा अब हमने बिजनेस की कमाई भी नहीं आ रही और करना भी है और समझ भी नहीं आ रही जो लोग अच्छा, इसमें फिर दो और चीजें हैं कि एक वो मैनेजर जो अपना, या सीईओ जो स्टार्टअप रन कर रहा है, एक वो, और एक वर्कर या एम्प्लॉय जो घर से काम कर रहा है. इन दोनों का माइंडसेट भी तो डिफरेंट है ना. एम्प्लॉय कह रहा है कि यार बस पैसे आते रहे, शायद मैं काम ही ना करूं, और फाउंडर कह रहा है कि भाई मैक्सिमम काम यूटिलाइज कर लें, इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाए. तो उस एंगल को आप जहन में रख के मुझे ये बताएं कि हाउ डू यू सजेस्ट टू कीप द मोटिवेशन इवन इफ देयर इज नो बिजनेस, क्योंकि ले ऑफ्स तो बहुत ज्यादा कंपनीज कर ही रहे हैं ना. सो ले ऑफ्स के बाद भी अगर आपसे अपनी कंपनी, तो व्हाट कैन दे डू टू मेक बेस्ट of their time during this crisis? अच्छा, सो यहाँ पे मैं वही बात कर रहा हूँ, इट्स इंटर रिलेटेड. हमें पहले बिफोर प्री कोरोना कंडीशन इसलिए डिस्कस करनी पड़ेगी बिकॉज आपका एम्प्लॉय या टीम मेंबर मोटिवेटेड कब होता है? जब आप उसको इन कॉन्फिडेंस ले रहे होते हो, राइट? सो आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. लेट्स से आपका एक एम्प्लॉय था और अभी अब कोरोना नहीं हुआ हुआ, राइट? वी आर सिटिंग इन जनवरी 2020. आपका एक एम्प्लॉय था, उसका कोई भी काम आ सकता है, उसकी कोई उसने वेकेशन लेनी थी या उसकी कोई और फैमिली कमिटमेंट थी या कुछ थी. उसने सिर्फ आपसे 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा मांगे छुट्टी के, राइट? और उसने ये नहीं कहा कि मैं छुट्टी करना चाहता हूँ. उसने सिर्फ आपसे ये आपको रिक्वेस्ट की कि ये काम मैं रिमोटली कर लूँ, ये जो मेरी पर्टिकुलर जॉब है ये मैं रिमोटली कर लूँ. अब अगर एक एम्प्लॉयर उस वक्त उसे ये कहेगा नहीं, जो तुम्हारा काम है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सिर्फ ऑफिस से हो सकता है, ऑफिस के बगैर, अगर तुम ऑफिस नहीं आ रहे, रिमोटली काम भी कर रहे हो, तो इन माई बुक्स यू आर नॉट इवन वर्किंग इन इटसेल्फ. सो देयर इज नो पॉइंट, यू हैव टू कम टू द ऑफिस, कट शॉर्ट योर लेट्स से इमरजेंसी और वेकेशन और व्हाटएवर, एंड be there in the office from 9 to 5. Same is the case with, let's say, एक आपका एम्प्लॉय कहते हैं यार आज मैंने 2 बजे जाना है, जो एक्स्ट्रा काम है वो मैं कल कर लूंगा, और उस वक्त भी आपका एम्प्लॉयर कहते हैं that's not a possibility. Now all of a sudden corona happens and the tables have turned, right? Now all of a sudden जो पहले एम्प्लॉयर कहता था कि आपका काम रिमोटली नहीं हो सकता, अब वो आपको फोर्स कर रहा है कि आप रिमोटली करो. और जो एम्प्लॉय पहले कहता था कि मैं रिमोट जाना चाहता हूं, वो ऑफ कोर्स एक रिबेलियस मोड में आएगा. एंड इट्स बेसिक ह्यूमन नेचर. आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी, यू कैन से, बैड एक्सक्यूज पर से. अगर एक एम्प्लॉय कह रहा है कि मेरे से घर में अब काम नहीं हो रहा, आपने कभी एम्प्लॉय को ट्रेन होने ही नहीं दिया उस सिचुएशन में, या आपने कभी वो छोटी छोटी ड्रिल्स की ही नहीं कि वो वर्क फ्रॉम होम को एम्ब्रेस कर सके. ये तो अभी सिलिकॉन वैली में ये एक वेव आई थी 4 डे वर्क वीक की या वर्क फ्रॉम होम, वो इंसिस्ट करते थे कि आप सर्टेन दिनों में करें. तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लाइक टेलेनॉर एंड ऑल, उन्होंने अपनी एचआर पॉलिसी में बनाया था कि अगर आप नहीं भी चाह रहे, आपको कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम के लेने पड़ेंगे, राइट? सो अगर आप ये देख रहे हो कि एम्प्लॉय का माइंडसेट ऐसे और एम्प्लॉयर का माइंडसेट ऐसा है, आई वुड से इट्स अ प्रॉब्लम बिगर देन कोरोना इन इटसेल्फ. इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ
in a way it's hypocrisy. Like पहले आप एक ही बंदे को शन ऑफ कर रहे हो ये कह के कि आप रिमोटली नहीं कर सकते, और अब आप उसी को इंसिस्ट कर रहे हो कि आपने 9 to 5 रिमोटली काम कर रहे हो. अच्छा उसामा, I'd इसका like to क्या हल है? आप ये हाँ चले हल बता दें पहले, फिर मैं अगला सवाल पूछती हूँ. हाँ. देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात, अच्छा क्वेश्चन है ये. देयर इज नो सिल्वर बुलेट सॉल्यूशन टू दैट, बट आप ऑफ कोर्स एक सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, राइट? इसका सॉल्यूशन हमने क्या निकाला हुआ था, मैंने आपको जो अभी बताया कि बात होती है डिसिप्लिन की, राइट? अभी इस वक्त सबसे ज्यादा मेजर जो लोगों को इशू है या कोरोना पे जो इशू आ रहा है उन्हें, वो है डिसिप्लिन का. दे आर रेंटिंग ऑनलाइन के आवर लाइफ इज नॉट डिसिप्लिन्ड एनीमोर. And when they talk about discipline, they are talking about a certain routine pattern, right? हमारी टीम, सिंस हमने उन्हें ये ऑप्शन दी हुई थी और कुछ लोग अक्सर ये टाइम टू टाइम चेक कर चुके हैं, तो एटलीस्ट उनके लिए वो हैबिट लूप को ट्रिगर करना was not that big of a problem. For them, the transition was very smooth. Like they could truly embrace this temporary routine or discipline per se, right? अगर सोल्यूशन ये था कि अगर हमने पहले ही कुछ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती जिसने, अब अगेन ये सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेसेस पे वैलिड है जो जो कि रिलेट कर सकते हैं इसके साथ. एक इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स एक आपका एक पूरा इंडस्ट्रियल यूनिट है जहां पे आपने कुछ, लेट्स सपोज कारखाने हैं फॉर इंस्टेंस, आपने एक यूनिट बनाना है, आप उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं कर सकते. बट पाकिस्तान में SMEs बहुत ज्यादा हैं or large scale businesses are very less. I'm talking about specifically about SMEs or businesses who have incorporated computers this way or another, right? तो आप even ये कर सकते थे कि आप 4-day work week करके कोशिश करो, 4-day work from office, one day from home, and then give 2 days off or give 1 day off and then give, you can say, 2 days from home, right? It's all about giving options to your team members, because here's the thing, मैंने आज तक अपने team members को as an technically और legally जो मेरे employees हैं उन्हें अपना employee consider नहीं किया, बल्कि अपना team member consider किया. I always want the same, you can say, how do I say, same respect or same preferences which I prefer for my own self for my employees, right? अगर मैं एक दिन नहीं आ सकता तो अगर उनके साथ उस तरह की इमरजेंसी है, I give them that option as well. And that is why I don't know if I've been fortunate enough, alhamdulillah, yeah, it was merely luck. Basically हमारा ये जो सारा A Clan का इकोसिस्टम है, जिसके अंदर A for Youth है, जिसके अंदर आलू क्लैन है, जिसके अंदर गैमा गेमिंग, A Startup Summit, क्लैन कैंप, ये सारे बाकी सब्सिडरीज हैं, ये टीम एफर्ट है. ये किसी भी एंगल पे इंडिविजुअल वन मैन आर्मी शो नहीं है, ये पूरी का पूरा टीम एफर्ट है. और टीम एफर्ट किस तरह से है, ये सिर्फ तब पॉसिबल होता है जब आपके टीम मेंबर्स, और मैं उन्हें एम्प्लॉइज कहना पसंद भी नहीं करता, जब आपके टीम मेंबर्स अपना ऑल इन दे रहे हैं. और इतना मुझे पता है कि अगर एक मेरा टीम का बंदा आज मुझे कॉल करके कहता है, और इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि आज मैं नहीं आ सकता, लेट्स सपोज एक बड़ा वो जोक्स भी क्रैक होते रहते हैं, राइट, कि मेरा टायर फ्लैट है या ये मसला हो गया, आज मैं ऑफिस नहीं आ सकता. I believe them. Instead of doing scrutiny on that, I say I buy your word for it, but I expect the same flexibility from you as well. And then there are times जहाँ पे ऐसा होता है कि एक let's suppose client ने कह दिया जी आप 9 बजे आओ, तो फिर मैं अपनी टीम को कहता हूँ यार go attend that meeting which is a 9 p.m. meeting, and they do that. ठीक है. So no questions asked. How, I'm just saying कि even though कि आपका मॉडल जो था काफी रिमोट वर्किंग के ऊपर डिपेंडेंट था, बट आफ्टर कोरोना आप what is the main thing, for me I think ये जो टीम की कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा होने लगी है ऑन WhatsApp और ऑन Zoom, हमारी मीटिंग्स हो जाती हैं बिकॉज हमारी वो कम्युनिकेशन, क्योंकि अब हमें पता है कि देयर इज नो ऑप्शन ऑफ गोइंग टू ऑफिस एंड मीटिंग एवरीवन, तो हम लोग सबसे ज्यादा अपने ओन पे क्लियर रहने के लिए कि हम जो काम करें वो, क्योंकि हमारे इवन के अगर हम प्लान 9 की बात करें तो जो द वे वी यूज्ड टू वर्क हमारा वो चेंज हो गया. अब हम लाइव ऑनलाइन सेशंस करते हैं, हम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, हम स्टार्टअप्स को ऑन कॉल लेके उनकी हेल्प कर रहे हैं, बट
हम लोग सब बहुत ज्यादा वर्कलोड हमारे पे फील होता है, लाइक देयर आर वर्किंग फ्रॉम होम मीन्स there are no timings. Do you agree with that? Like how an employee can manage workload during that time? Like it's not that मैं रात के 10 बजे भी काम कर रही होती हूँ, मैं रात के 12 बजे भी कर रही होती हूँ, मैं सुबह 9 बजे भी कर रही होती हूँ, मैं 1 बजे भी कर रही होती हूँ. So how do you manage timings? What do you have to say about that? Fair call. So यहाँ पे अभी आपने एक बहुत important बात की मीटिंग्स की, और रिसेंटली यही आई हैव रियलाइज्ड दिस कि मीटिंग्स एकदम ज़्यादा हो गई हैं, जूम पे मीटिंग्स और वो सारी डिस्कशंस, राइट? So I've always believed that over communication per se is also one of the evils in the business world. I still remember those days जब मैं like office जाता था. I happened to be like I was a part of this one organization जो डेली सुबह मीटिंग कॉल हो जाती थी, राइट? और शुरू में व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई यूज्ड टू टेक दिस नोटपैड एंड पेन, और मीटिंग कॉल हुई है एंड एवरीवन इज एक्साइटेड, और वो मीटिंग 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटा गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए, और वो मीटिंग चलती जा रही है. एंड देन आई लुक एट माई नोटपैड एंड आई हैव ओनली रिटन लाइक लेट्स से 1 word or 2 words. For me, those 3 hours were proper wastage of precious resource time or employee time, right? मेरे नजदीक बिला वजह की meetings are more, you can say, disastrous than no meetings at all. और उसकी रीजन ये होती है जब आपने mechanisms नहीं बनाए होते. Like हमने specifically performance gauging, हम उनको log sheets कह रहे होते हैं, sheets बनाई होती हैं. Instead of me doing a meeting, like I'll give you an example. I don't know if it's a very good managerial stylist or not, but we are there, we are profitable, alhamdulillah. In these 8 years, we have never registered a single loss on monthly basis. Like we have always been profitable, alhamdulillah. I don't know, it has to do with And that's because कि आप मीटिंग नहीं करते अपनी. मैं यही कहने लगा हूं, मैंने इस वक्त पिछले 8 सालों में शायद टोटल अपनी टीम के साथ 16 मीटिंग्स की होंगी. लाइक मीटिंग की सेंस में. अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि आपने 5 मिनट चलते फिरते एकदम बात कर ली, वो मीटिंग है, आई वोंट कंसिडर दैट अ मीटिंग. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज अ प्रॉपर फॉर्मलाइज्ड मीटिंग व्हिच इज कॉल्ड इन, ऑर्गेनाइज्ड, एंड एवरीवन इज टोल्ड यू हैव टू बी देयर. सो उस लिहाज से मैंने आई गेस टोटल साल में हम शायद 2 करते हैं उस तरह की मीटिंग्स, एंड इट्स गोइंग प्रीटी वेल. हाँ, ऑन द अदर हैंड हम क्या करते हैं, हमने लॉग शीट्स बनाई हुई हैं, लाइक जहां पे हर बंदे ने जो भी किया उसने खुद से लॉग करना होता है अपने टाइम के अंदर. इसी तरह हमने डिफरेंट परफॉर्मेंस मैट्रिसेस भी सेट किए हैं. अभी के लिए अभी जो लोग इस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उन्हें यही कहूंगा कि पहली बात तो ये पॉइंटलेस मीटिंग्स आर पॉइंटलेस. लाइक ये एक बंदा रिफ्लेक्ट करे ना किसी भी मीटिंग पे, इनफैक्ट उसको रिकॉर्ड करके वो खुद रियलाइज कर सकता है कि वो कितनी पॉइंटलेस या रेपिटेटिव थी, राइट? सो अवॉइड दोस. On the other hand, also you need to bring in a very specific mechanism के when should like आपका, let's suppose आपको अगर टीम के एक बंदे ने मैसेज किया है तो आपको पहले से प्री डिफाइंड हो कि यार मैं विद इन 6 आवर्स आपको रिप्लाई करूंगा. लाइक ये इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सुबह 6 बजे भी मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो, आप रात के 12 बजे भी कर रहे हो, राइट? आप 9 बजे भी कर रहे हो या 8 बजे भी कर रहे हो. I've seen employers getting frustrated, like one of these folks, like a very nice guy and a very reasonable entrepreneur. And what do you say about managing time at when you're working from home? Like obviously it's your company and you're the founder and the CEO and the managing partner, however you want to put it, but it's obligated on you कि आपने तो सारा वक्त काम करना है और अपने स्टार्टअप के बारे में सोचना ही है. But what do you recommend to your own employees कि how to manage work at home? Yeah, is it just on their own? कि वो thinking about work all the time, even if it's your own work, is not healthy. So you need to take some time off. और अच्छा, जो आपके टीम के लोग हैं, of course, यार, I believe
humans and specifically adults are intelligent enough कि अगर आप उन्हें बता दो कि यार ये काम मुझे चाहिए in the longer run, let's say over a week, so they will figure out a way to do that. अगर आप उनसे like हमारा एक important ये भी तरीकेकार है, let's say हमने एक डिजाइन बनवाने या कोई भी टास्क दिया हुआ है, right? आज क्या है, आज let's say 24th April है, right? So हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बताएंगे ठीक है हमें 1 मई को ये चीज चाहिए, अगर हमने किसी पे ये डिप्लॉय किया, राइट? मैंने अपनी टीम को बताया, आगे से मैंने अपने मैनेजर को बताया, आगे से मैनेजर ने डिप्लॉय कर दिया किसी स्पेसिफिक एग्जीक्यूशनर पे। हम उससे बताएंगे 1 मई को हमें ये चीज चाहिए, अगर कोई भी क्वेश्चन है उस दौरान, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, इवन एट नाइट, शूट मी अ मैसेज एंड आई विल रिस्पॉन्ड व्हेनेवर। बट जब तक 1 मई की 12 AM नहीं ना हो जाएंगे, मैं उससे उसके बारे में ये नहीं पूछूंगा कि व्हाट इज द टास्क अपडेट, वो काम कहां तक पहुंचा। हाँ, बट जैसे ही टाइम हो जाएगा तब मैं ऑफ कोर्स स्क्रूटनी करूंगा, और तब अगर मुझे एक बंदा कह रहा होगा कि यार मुझे ये नहीं समझ आई थी, तो मैं उसे बताऊंगा यार वो तो मैं तुम्हें पहली ऑप्शन दे चुका था कि यू कैन रीच आउट टू मी व्हेनेवर यू वांट। बट आई वोंट बग देम अगेन एंड अगेन कि ये क्यों नहीं हुआ अभी तक, ये कहां तक पहुंचा, ये हो जाएगा। Sama, I want to ask कि so बहुत सारे like recently मैंने इस चीज पे थोड़ा सा पढ़ा है कि या sort of study किया है कि लोग कहते हैं कि जो बड़ी companies हैं, the big guns in the market, उनका ये शायद थोड़ा सा मतलब ज्यादा मुश्किल है to work from home, और स्टार्टअप्स के लिए बहुत आसान है टू वर्क फ्रॉम होम, बिकॉज एक स्टार्टअप या एक एंटरप्रेन्योर पहले से ही सॉर्ट ऑफ एक 9 to 5 मॉडल फॉलो नहीं करता और अपने रिलैक्स टाइमिंग्स पे होता है और सब कुछ। डू यू थिंक दैट इज ट्रू? Like, so, do you think that like it's easier for entrepreneurs to do that rather than big companies? Not at all. So basically, it's the reverse actually. जो entrepreneurs होते हैं या small businesses या startups होते हैं, उनके पास इतना credit line या resources नहीं होते कि they experiment with all of these new models. They give enough flexibility to their folks. They are always on an adrenaline rush and they are going all in. Whereas large companies have enough resources, they have enough, you can say, आप सबको छोड़ देते हैं। अच्छा, अभी इस चीज को भी छोड़ते हैं। I've been exposed to 26 ecosystems so far, like 26 countries. And Pakistan is unfortunately, the lowest ranking, you can say, country in terms of work model innovation. आप अगर किसी भी बाहर के, like, for instance, मुल्क में जाते हैं, वो चाहे डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, जो भी है, चाहे उनके स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर्स नहीं भी कर पा रहे, एटलीस्ट उनकी बड़ी कंपनीज ने कुछ ना कुछ इस तरह के प्रेसिडेंट्स सेट किए होंगे कि उनकी जो एम्प्लॉइज हैं या जो उनकी टास्क फोर्स है या वर्क फोर्स है वो स्टेबल रहे, राइट? पाकिस्तान में ऑन द अदर एंड इट्स द रिवर्स। यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेटली हम कहते हैं एक बड़ी वो सेट मेंटालिटी जिसे कहते हैं, सैडली द मोस्ट ग्रीडी एंड अनएथिकल, और अगेन यहाँ पे मेजॉरिटी की बात हो रही है, ऑफ द काइंड ऑफ फोक्स आर दोस फोक्स। लाइक आई हैव सीन, यहाँ पे हम लोग अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आई वोंट नेम देम, दे ओ अस लाइक the kind of money which can form, like which we can invest in another startup in itself, like 1 year worth of services. उनके पास ये सारे पैसे पड़े हुए हैं, but they are not, like, you can say, releasing them because of this one situation. On the other hand, I know these small startups, these small eateries, जो बेचारे मुझे पता है check to check जा रहे होते हैं, but they are still covering up. यहाँ पे वो एक important बात आ जाती है ना, the world we are living in, they have still paid us regardless के situation कैसी है। और यहाँ पे एक important बात, पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन एक बहुत मेजर इशू इसीलिए है। अब यहाँ से एक बंदा ऑफ कोर्स बाहर जाता है और वहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, हाँ वहाँ पे अपने मसाइल हैं, लाइक ऐसा नहीं है कि वो यूटोपियन इकोसिस्टम्स हैं, बट दे आर फार बेटर एंड
better in a way. At least they have this one. The whole point is, मैं हमेशा ये हमारी टीम में भी बात हो रही होती है, the first step of solving a problem is acknowledging there is a problem, right? हम लोग unfortunately हमारा ecosystem रहता है denial में. चलें वहां पे अगर यूटोपिया नहीं है तो एटलीस्ट उन्हें ये जरूर पता है कि दिस इज अ प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी मेजर प्रॉब्लम एंड इट नीड्स फिक्सिंग एनी टाइम सूनर. यहाँ पे लोग ऑल टुगेदर डिनाई कर देते हैं टू लाइक सेव देमसेल्व्स फ्रॉम दैट हार्ड वर्क, लाइक दैट एफर्ट, राइट? फॉर इंस्टेंस आपकी जो एचआर पॉलिसी है वो वही की वही रहेगी. लाइक टेक्निकली एचआर पॉलिसी तो कोई होती भी नहीं है यहाँ पे. एचआर का डिपार्टमेंट होगा बट वही पुरानी पॉलिसीज हैं, कोई उसमें इनोवेशन. हाँ, अब जो आप बात कर रहे हो कि यहाँ पे बड़ी कंपनीज करती हैं या नहीं करती, आप खुद ही रियलाइज करना कि यहाँ पे टेक्निकली जो टेक सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो कि काफी बड़े हैं, since they are already exposed to these international ecosystems, they know how they are excelling. So their HR policy is already, you can say, like on par with the Western ecosystems. But मेरे नजदीक अच्छा, it's much easier. आप मेरे उस सवाल का और, जवाब दें कि how important is it at this current time for every brand out there and restaurant भी I'm sure नहीं, restaurant I think बंद है, but every other business to मतलब to have a presence on the web on social media, like how important is it for them? Like, do you agree with them pulling out accounts from digital agencies and saying that we are not going to pay them, we won't be able to pay you, तो हम बंद कर दें? Or is it the time that if they have a web presence on social mediums, तो वो it can work wonders for them? So that's in a way that's a trick question. उसकी रीजन ये है कि अगर तो लेट्स सपोज एक एंटरप्रेन्योर आता है और वो, या एक बिजनेसमैन आता है और वो कहता है मेरे पास कैश फ्लो प्रॉब्लम है, राइट? मेरा फाइनेंशियल डेफिसिट चल रहा है एंड आई एम पुलिंग आउट ऑफ ऑल द ऑपरेशंस एंड आई एम फ्रीजिंग एवरीथिंग, राइट? सो तब तो आप ऑफ कोर्स उसे नहीं ये रिकमेंड कर सकते कि आप डिजिटल पे जाओ, ठीक है? A is one thing. Like this is one option. B is another option. Let's say someone says कि मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं कि मैं डिजिटल पे इन्वेस्ट कर सकूं, बट मेरी पीछे से सप्लाई नहीं आ रही बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, बिकॉज इट्स अ टेंजिबल प्रोडक्ट एंड आई लाइक इवन इफ देयर इज डिमांड पर से, लाइक मेरा जो डिजिटल एड है वो चल जाता है काफी अच्छे तरीके से, बट मैं सप्लाई नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरे पास सप्लाई नहीं है, इसलिए मैं नहीं स्पेंड कर रहा. दैट स्टिल इज अ वेरी वैलिड आर्गुमेंट, right? And then this leaves us with the third option. There is someone who says कि मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे पास सप्लाई भी है, बट स्टिल मुझे लगता है कि अभी मुझे अपना पुल आउट कर लेना चाहिए. That's one of the most stupidest, you can say, decisions one can ever take. उसकी रीजन ये है कि social media activity is at an all-time high. Like digital, we are technically as of now living in the digital realms in itself. अभी भी अगर हम देखें तो ये this is the digital world, right? Everyone is in the digital world and you need to spend a bit extra to gauge on that mileage. क्योंकि of course एक bidding system भी होता है. अगर आप पहले 100 रुपीस खर्च करते थे और 100 एडवर्टाइजर्स थे, तो अभी अगर लेट्स सपोज 1000 रुपीज आप 1000 एडवर्टाइजर्स हो जाते हैं और 100 रुपीज ही आप खर्च कर रहे हो, तो आपके बिडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग यू वोंट गेट द मैक्सिमम यील्ड. ओके, मैंने ये भी सुना है कि फेसबुक ने रेट्स थोड़े कम कर दिए हैं टू एडवर्टाइज. आई डोंट नो इफ इट्स राइट और रॉन्ग, कैन यू टेल मी? अच्छा, सो फेसबुक के रेट्स तो इन इटसेल्फ हैं ही नहीं, राइट? लाइक दे वर्क ऑन द बिडिंग मॉडल. फॉर इंस्टेंस आपने जब आपने अगर एक एड चलाया है और किसी और ने एड चलाया है और आपकी बेसिस लेट्स सपोज आप दोनों के पैरामीटर्स सेम है, तो फेसबुक आप दोनों का एड लाइक इस तरह एक साथ तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो दो एड्स एक साथ इस तरह नहीं थ्रो करेगा आपकी फीड पे, तो वो बिडिंग सिस्टम पे आ जाएगा. ये जरूर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लोगों ने अपनी स्पेंडिंग कम कर दी. बहुत ज्यादा बिजनेसेस जैसे ही स्टैंड स्टिल पे आए, अक्सर ने ले ऑफ, बहुत ज्यादा बिजनेसेस ने ले ऑफ्स कर दिए,
अक्सर लोगों ने अपना पूरे का पूरा ऑपरेशन सेट स्टैंड स्टिल पे कर दिया, तो जो पैसे इंजेक्ट होते थे फेसबुक में वो कम हो गए, और अगर वो कम हो गए तो ऑफ कोर्स आपकी बिडिंग जो है वो बड़ी अब आसान हो गई है, तो ऑफ कोर्स यू विल गेट बेटर रेट्स. सो अच्छा, उस आर्गुमेंट से हो Usama, सकते वो. I've got a couple of questions Maham. that people have sent. So let me just ask them. So Fiza is asking हाँ. that is there any way that the technical know-how to take their business online can be taken to the uneducated masses? Just saw people selling fabric behind dropped shutters, and police are closing in on shops, blah blah blah. People are desperate to earn and feed their families. So basically what she's trying to say is कि ये जो बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने का तरीका है या वर्क फ्रॉम होम का तरीका है या अनएजुकेटेड मैसेज तक किस तरह पहुंचाया जा सकता है, लाइक इज देयर एनी वे? अच्छा, so firstly तो it depends how you define uneducated, right? Like if you are talking So in about this case, let's assume business. कि हाँ कि मतलब जो लेट्स से आपका कोई टेलर है या कोई दुकान वाला है जो इस चीज को ऑनलाइन नहीं लेके आ सकता, उसके लिए आप उस सेंस में आप बात कर रहे हैं. देखिए, this is a perfect example of you can say this, it's more of a chicken and egg problem in a way. अब मैं एक hypothetical scenario लेता हूँ. Let's say there is this area A और उसके अंदर एक टेलर बैठा है, और टेलर जो है फिजिकली सिर्फ एरिया ए को दे सकता है, बट अगर हम टेलर को ऑनलाइन ले जाएं तो वो एरिया जी तक पहुंचा सकता है अपनी प्रोडक्ट्स, राइट? या एरिया बी कह देते हैं, जी नहीं जाते, एरिया बी तक जा सकते हैं. अब अगर तो आप उस टेलर से जाके डायरेक्टली बात करें और उसे नंबर गेम्स के साथ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर एक मेरे लिए बिजनेसमैन अनएजुकेटेड है या एजुकेटेड है फर्क नहीं पड़ता, बट अगर वो बिजनेसमैन है उनके पास बेसिक नंबर एक्यूमेन होगी, लाइक फाइनेंशियल एक्यूमेन होगी. नहीं, अगर लेकिन आप उसे आप किसी थोड़ा तरह समय देखो, आप थोड़ा मैसेज की बात करो ना. अभी आप कह रहे हो कि आप लेट्स से एक टेलर से जाके बात करो. सो इफ let's say that this situation continues, how can you educate the masses regarding it? You can't go to each individual and then. मैं सिर्फ एक एग्जांपल देने लगूं चेन रिएक्शन की. सो लेट्स से यू गो टू दैट टेलर एंड यू शो दैट टेलर कि यार ये देखो, अगर पहले तुम इस तरह करते हो ना, लोग तुम्हारे पास आते हैं, ब्ला ब्ला, ये तुम्हारी वेबसाइट है, ये तुम्हारा फेसबुक का पेज है, इस तरह ऐड चलाएंगे, तुम इतने लोगों तक पहुंच जाओगे, तुम्हें इतने ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डर्स मिल जाएंगे. नाउ लेट्स से वो एक टेलर ये करेगा ना, तो उसके एरिया में जितने, बिकॉज दे मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस दे फॉलो सूट, राइट? They see what their other competitors, and here I'm talking about one singular vertical in itself. एक टेलर करेगा, let's suppose कोई और टेलर है, अब मैं जो बात करता, अब एरिया बी का टेलर है, राइट? अब आपने सिर्फ, आपका काम है सिर्फ वो एक चेन रिएक्शन को इनिशिएट करना. उसका कस्टमर उसके पास जाएगा, वो कहेगा यार मुझे उस दिन ऐड नजर आया था, तुम भी ऑनलाइन करते हो, अगर करते हो तो मैं कल से तुम्हें ऑनलाइन ऑर्डर दे दिया करूंगा. ठीक है, वो भी या तो वो फिगर आउट कर लेगा या उसी से पूछ लेगा या रीच आउट करेगा टू पीपल हु स्पेशलाइज इन प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज. Okay. So for me it's not something which is very hard to crack. Like you just pick one singular domain and you'll see like it would work wonders. Like for instance, सबसे ज्यादा जो स्टॉन्चेस्ट किस्म के भी बिजनेसेस थे जो नहीं बिलीव रखते थे डिजिटाइजेशन पे, जब उनके कंपेटिटर्स गए तो उन्हें नेचुरली जाना पड़ा. ऑल्दो वो अभी भी बिलीव नहीं रखते, बट उन्हें फिर भी नेचुरली जाना पड़ा. Okay, so there is another question. So Sarmat is asking that do you have any advice for startups that are currently at a halt and not making money because of their model or whatever issues that they have? इसको आई गेस हमें स्पेसिफिक इस तरह से करना पड़ेगा कि, सो if I were to formulate this question, you are saying कि let's say a startup is on a standstill and they are not making any money. Yeah. And what should they do about it? Yeah, what should they do about it? अच्छा, so यहाँ पे आ जाता है लाइक ये एक तीसरी, ये जो चौथी चीज मैंने लिखी है, the world we are living in, fixed versus variable expenses, right? हमेशा से मैंने स्टार्टअप्स को यही एडवाइस की है कि जो आपका मॉडल है इनफ्लोस का और आउटफ्लोस का,
आउटफ्लोज का स्पेसिफिकली वो वेरिएबल होना चाहिए और फ्लूइड होना चाहिए. इसकी एग्जांपल है, आपने अगर आप उस अभी स्टेज पे हो, आप अगर छोटी स्टेज पे हो, आप अपना बफर दो कि लेट्स सपोज आपने ऑफिस लेना है, आप ऑफिस सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे लो, पे देम मंथली rather than a yearly contract, so that you know if something of this, because this in a way is more of a black swan event in itself. ये सिर्फ स्टार्टअप्स का इशू नहीं है, ये तो पूरी दुनिया का इशू है. इसके अंदर तो इनफैक्ट पूरी इकोनॉमीज स्टैंड स्टिल पे गई हुई हैं. बट जनरली हम बात करें इस तरह की सिचुएशंस में, आपके इसी तरह एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट्स में आप इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉय को अंडर द शेडोज रखो, आप पहले ही उसे इन कॉन्फिडेंस में रखो कि यार ये हमारी फाइनेंशियल हेल्थ है और हम किसी भी वक्त तुम्हें बता सकते हैं कि यार हम तुम्हें लेट्स सपोज इतने दिन का नोटिस देंगे, इंस्टेड ऑफ मेकिंग प्रोमिसेस व्हिच यू नो दैट यू वोंट बी एबल टू फुलफिल, राइट? ओके. इसी तरह बाकी जो सब्सक्रिप्शंस हैं आपकी, लाइक अगर आपने एक अकाउंट और लीगल टीम रिटेनर पे रखी हुई है, उन्हें भी यही बताओ दैट यू वोंट बी एबल टू साइन अ वेरी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सो दैट यू आर नॉट बाउंड टू pay. And then same goes for the credit related vehicles as well. अगर इस तरह एक स्टार्टअप कर ले तो वो एक indefinite period के लिए dormant रह सकता है. And as soon as the market pops up again, the startup would be like back in operation. But that is only a dormant strategy. That's not a growth strategy. Growth strategy is a bit different. All right. ठीक है. Tuba, do you have any more questions? They're done from my end. I can't हाँ, see. बस it just last में to give out a message to everyone whose business is affected by corona. And ईद मुबारक का मैसेज दे दूं तुबा हर एक को. आप वही दे दें. रमजान, अब आप वही दे दें. रमजान शुरू हो रहा है. हाँ. चल, ईद रमजान मुबारक दे, ईद पे नहीं, अगले but सेशन पे. see- हाँ. Seriously, like what kind of a message, like in terms of In terms of startups? work just a generic motivational quote जो सबको बस उठा दे अपनी अच्छा. बिस्तरों से और वो फौरन काम पे लग जाए. I want to give two messages, right? Okay. एक तो like general और एक specifically. पहला मैसेज तो ये है कि जो clients बिला वजह लोगों के एक 2 साल पैसे रोक के बैठे रहते हैं, उन्हें थोड़ी सी ethical शर्मो हिया होनी चाहिए उनके अंदर कि they should pay their teams. For instance, just to give you an idea, even in these hard times, for a humble organization like ours, we have paid all of our team members, although our clients are defaulting our payments since January. और उनका आर्ग्यूमेंट क्या है? कोरोना. लाइक वो जनवरी की पेमेंट इसलिए नहीं देना चाहते जिसकी वो सर्विसेज रेंडर कर चुके हैं क्योंकि मार्च में कोरोना आया. That's very stupid. So and it stands for all the businesses out there as well. Even like again ये हमारी थोड़ी सी personal ethics है इसके अंदर. Even if it has to do with you diluting your own personal bank statements or your personal assets or net worth, you need to pay your employees, you need to pay everyone who has worked for, and corona should not be an argument for that. हाँ, सेकंड मैसेज क्या है आपका? जब आपने उन्हें बता दिया कि अब से लाइक स्टैंड स्टिल पे है, हाँ तब आप पे नहीं पड़ता, बट जो उन्होंने रेंडर की थी सर्विसेज वो जरूरी है. सेकंड मेरा मैसेज ये है कि एवरीवन शुड एट वन पॉइंट इन देयर टाइम experiment with the remote model, like remote work model, either in the form of their own organization या खुद से कुछ start कर लें. Digital nomadism is the exact terminology. तो अगर कोई company है who is finding it very difficult to we provide consultancy. We provide Okay, you do that. consultancy. Yeah, so अगर वो प्लान 9 के तवस्सुत से आएंगे तो हम उन्हें डिस्काउंट दे देंगे. इनफैक्ट हो सकता है हम प्रो बोनो करते हैं, बट वी डू प्रोवाइड कंसल्टेंसी. मैटर ऑफ फैक्ट इज अभी भी, so as of now, just imagine that all three of us, like all the 3 partners of A-Clan, they are purely remote. So one of them is in the US, one is in Islamabad, one is in Lahore.
or we have already expanded to like we have already expanded to US market, we have expanded to Australian market. And यहाँ पे एक important बात है, again ये consultancy नहीं है, it's more of a program. हम कुछ ईस्ट एशियन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके एक ईयर एंड पे एक प्रोग्राम लाइक ए कॉन्फ्रेंस, मिनी कॉन्फ्रेंस बना रहे हैं फॉर रिमोट वर्कर्स एंड फॉर रिमोट एंथुजियास्ट्स, राइट? सो इसके अंदर लाइक विल बी मेकिंग द एप्लीकेशंस लाइव. इसके अंदर प्राइमरीली एंटरप्रेन्योर्स शुड अप्लाई एंड दे लाइक विल टीच देम हाउ टू convert their rather location locked model to a remote model. वो उसको join कर सकते हैं. Other than that, they can simply, like we are that open, they can simply shoot a message at our page or simply call us and ask very specific questions or stuff they are struggling with, and we'll guide them with the best of our intentions. All right. Thank you so much. Okay, Ji. Tuba, anything you want to say? No. Ramzan ho And I just want to say thank you. यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन देख रहा था वैसे, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, यहाँ पे आया हुआ था, हाउ कैन वी ट्रैवल फॉर फ्री, राइट? इसको हमने कन्वीनियंटली इररेलेवेंट करके इग्नोर कर. चलें फिर जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछे उन्हें मैं पर्सनल प्राइवेट, हाँ जी, उनको आप प्राइवेट में जाके जवाब दे सकते हैं अपनी पर्सनल. डन. ठीक है जी. All right, Usama, thank you so much for joining us, and I hope that everyone who was listening to this session, it was helpful for them. And जैसे आपने कह दिया, if anyone wants to reach out to you, they'll reach out to you on their own, and they'll be your problem then. ठीक है जी. All right. All right. Thank you जी. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.